Students, how are you? I hope you are very well at home. Today I teach you class 9 mathematics, an important part of class 9 mathematics, introduction to Euclid geometry. मैथमेटिक्स आपको पता ही है, इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न. व्हाट इज ज्योमेट्री? किसी भी चीज़ की आप अगर बेसिक से जीरो से डिफिनीशन शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है. व्हाट इज ज्योमेट्री? द वर्ड ज्योमेट्री ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो विच मीन्स अर्थ एंड मेटेरियल मीन्स मेजर. Geometry from the ancient Greek word geo, earth, metri, measurement, is a branch of mathematics concerned with question of shape, size, relative position of figure and the properties of shape. And mathematician who works in the field of geometry is called geometer. In the short, geometry is a branch of science which study with question of shape, size and relative position of figure. Euclid geometry. Euclidean geometry, the study of plane and solid figure on the basis of assumption theorem employed by the Greek mathematician Euclid 300 BC in the rough outline. यूक्लिड ज्योमेट्री जैसे चैप्टर का नाम है तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, हु वाज यूक्लिड? कौन थी यूक्लिड? यूक्लिड sometimes called Euclid of Alexandria to distinguish him from Euclid of Megara, was a Greek mathematician often referred to the founder of geometry or father of geometry. ये यूक्लिड, दो यूक्लिड हैं, लेकिन जिस यूक्लिड की यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो ग्रीक के थे. इनका फिगर भी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फिगर. Although Euclid is a famous mathematician, very little is known about his life. कहा जा रहा है कि यूक्लिड बहुत महान मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों के पास है. इट बिलीव दैट ही स्टडी स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ये प्लेटो के शिष्य थे. यूक्लिड वाज बॉर्न अराउंड 365 BC in Alexandria, Egypt and lived with until 300 BC. Euclid most famous work in his collection of 13 books डीलिंग विद ज्योमेट्री कॉल्ड द एलिमेंट. उनकी सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी है कि उन्होंने द एलिमेंट नाम से एक बुक लिखी जो 13 बुक का कलेक्शन है. एक बार फिर बता दें, यूक्लिड इजिप्ट के रहने वाले थे 365 to 300 BC. क्लास 9 मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 10. ज्योमेट्री, postulates and assumptions. The basic facts which are taken from granted without proof and which are specific to geometry are called postulate. वो चीज़ें जिन्हें बिना प्रूफ के हम मान लेते हैं और उनका रिलेशन ज्योमेट्री से होता है, उसको postulates कहते हैं. The basic facts which are taken for granted without proof and which are used throughout the mathematics are called assumptions. वो स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के मान ले जाते हैं और जिनका रिलेशन मैथमेटिक्स से होता है, मतलब उसको किसी भी ब्रांच में हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के, उसे हम एजम्स कहते हैं. और पासुलेट को सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट को पासुलेट्स कहते हैं. थ्योरम, पहले पासुलेट और एजम्स दोनों चीज़ों को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या उनका प्रूफ होता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल से काम चलता है. बट थ्योरम, the conclusion obtained through logical reasoning based on previously proved result and same assumptions constitute a statement known as a theorem or proposition. Some important definition. Point, you know before. What is point? A point is represented by a fine dot made by a sharp pencil on the sheet. You can learn that a point has no breadth, no length, no height. Plane, the surface of a smooth wall or the surface of a sheet of paper or a surface of a smooth blackboard are a best example of plane. Line, a line is a breathless length. For if we fold a piece of paper, the crease in the paper represent a geometrical straight line. अगर पेपर को हम बीच में से मोड़ देते हैं
तो वो जो एक धारी बनती है वही स्ट्रेट लाइन का एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। इंसिडेंस एग्जाम्स, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, किसी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्स टू, थ्रू ए गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन खींचे जा सकते हैं। एग्जाम्स 3, इन ए गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन्स बोथ द पॉइंट, किसी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। कोलिनियर पॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता है, 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them. Congruent line, 3 or more lines are said to be congruent if there is a point which lies all of them. अगर 3 या 3 से अधिक लाइनों का कोई एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वे कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाते हैं। Similarly, you can know before intersecting line, 2 lines which meet at one point are said to be intersecting line. The common point is known as point of intersection. Line segment additionism, if C is any interior point on a line segment AB, then AB is equal to AC plus CD. यूक्लिड 5 पासुलेट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूक्लिड 5 पासुलेट्स। फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, जैसा कि अभी शुरुआत में बताया गया था, वही चीज़ यूक्लिड ने भी अपने पासुलेट में ऐड किया है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लाइन खींचा जा सकता है। द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, अगर कोई एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है तो उसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थर्ड, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर और रेडियस को लेकर हम सर्किल खींच सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, यू नो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, अगर 2 बच्चे या 10 बच्चे 90 डिग्री का एंगल सही सही बनाएं तो सब सेम होंगे। फिफ्थ पासुलेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यूक्लिड इन ज्योमेट्री। फिफ्थ पासुलेट पर अलग से क्वेश्चन आते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, then the 2 straight line if produced infinitely meet on the side which is angles are less 2 right angle. I try to explain it again. अगर 2 लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन आ रही है तो एक तरफ के इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर अगर जिस तरफ 180 डिग्री से कम एंगल बनेगा, लाइनें उस तरफ जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। सम यूक्लिड एजम्स, एजम्स और पासुलेट में एक बार फिर अंतर बता दें। पासुलेट का रिलेशन ओनली ज्योमेट्री से होता है और एजम्स का रिलेशन पूरे मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच से हो सकता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी इक्वल होंगे। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, अगर दो तरफ सेम नंबर ऐड किया जाए तो सेम होंगे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कोई पूरी चीज़ है वो हमेशा अपने हिस्सेदार से बड़ी होती है। ए सिस्टम ऑफ एजम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एजम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एजम्स आर प्रीवियसली प्रूव्ड एट स्टेटमेंट, अगर कोई एजम्स किसी पहले से प्रूफ एजम्स या थ्योरम का अपोजिशन करती है, रिजिस्ट करती है, उसके विरोध में जाती है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ एजम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एजम्स ए स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स एनी एजम्स आर प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग my channel or this video, and again thank you for subscribe my YouTube channel। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का अगला पार्ट आपको आसानी से मिल सके।
Thank you again. Thank you.